السلام علیکم، دنیا نیوز HD کے ساتھ میں ہوں عزیر عبدالستار اور میں ہوں جویریہ زید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، عمران خان کی اہلیہ کی نئی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی توشہ خانہ کی اشیاء کی تصاویر بنانے پر بنی گالہ کے نگران پر برہمی کا اظہار کر رہی ہیں۔ آڈیو میں کیا گفتگو ہوئی، اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی نئی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ نئی آڈیو میں بشرا بی بی بنی گالہ کے نگران انعام خان سے مبینہ طور پر گفتگو کر رہی ہیں۔ بشرا بی بی نے توشہ خانہ کی اشیاء کی تصاویر بنانے پر انعام خان پر برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر کے اندر جو چیز آئے اس کی تصویر تو نہیں بناتے۔ نگران بنی گالہ کے انکار پر بشرا بی بی مبینہ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران کسی دوسرے شخص سے بات کرتی نظر آتی ہیں۔ مبینہ گفتگو کے دوران بشرا بی بی دوسرے شخص سے استفسار کرتی ہیں کہ کیا اس نے انعام کو تصاویر بھیجی ہیں، یہ بھی بتاؤ تصویریں بنانے کا کس نے کہا۔ مبینہ آڈیو کے آخر میں بشرا بی بی نے انعام کو ڈانٹ بھی پلا دی۔ بشرا بی بی کہتی ہیں کہ وہ آئندہ گھر کے اندر نہ آئے۔ دنیا نیوز کے اینکر پرسن کامران شاہد کا کہنا ہے کہ نئی مبینہ آڈیو سے پروگرام آن دی فرنٹ میں بریک کی جانے والی سٹوری کی تصدیق ہو گئی۔ ہماری سٹوری جو ہم نے بدھ کو کی تھی دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے آن دا فرنٹ، تو اس کی تصدیق ہوتی ہے جو کانٹینٹ ہے۔ اگرچہ یہ ایک ایلش آڈیو ہے، اس کا فورینسک ابھی نہیں ہوا ہوا، لیکن اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ اس سٹوری سے بالکل اس کے ساتھ وہ مل جاتا ہے جو ہم نے سٹوری میں تصاویر دکھائی تھی۔ اور ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ توشہ خانہ کے اندر یہ جو تحفے تھے یہ گئے ہی نہیں ایویلویشن کے لیے، یہ سیدھا گئے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر۔ تصویر ایک ریکارڈ ہوتا ہے، تصویر ایک ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے آپ کے پاس آئی ہیں، اور اس کے اوپر ان کا یہ ریئیکشن بڑا حیران کن ہے۔ بشرا بی بی کی بنی گالہ کے نگران سے مبینہ گفتگو منظر عام پر آنے سے نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا آڈیو لیکس پر رد عمل۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بشرا بی بی اور انعام خان کی آڈیو کٹ پیسٹ سے بنائی گئی ہے، مختلف آڈیوز ریکارڈ کرنے کے بعد انہیں جوڑا گیا، مبینہ ٹیپ مستند نہیں ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنا محض خام خیالی ہے۔ یہ اس وقت جو تمام آڈیوز آ رہی ہیں یہ ایکچولی اس میں کٹ پیسٹ کیے گئے ہیں، ٹوٹے جو ہیں وہ جوڑے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کسی آڈیو ویڈیو کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کسی کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، کوئی کچھ نہیں پتا۔ اور اگر کسی کا خیال ہے یہ اس طرح کی آڈیو سے یا ویڈیو سے کوئی آپ پولیٹیکل مائلیج کسی کو ملے گا اور آپ عمران خان کو کرپٹ ثابت کر سکیں گے، تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ جائیں اور ایک حقیقت کی دنیا میں۔ اور مبینہ آڈیو پر مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران اپنے روایتی ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، نواز لیگ کا سیل آوازیں جوڑ کر یہ کام کر رہا ہے۔ مزید کہا کہ پی ڈی ایم عمران خان کی بڑھتی مقبولیت سے خوفزدہ ہے، سرکاری خزانے پر بنایا گیا میڈیا سیل مخالفین اور اداروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ ڈاکوؤں کا ٹولہ ذاتیات پر حملہ کر کے اپنے جرائم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ عمر سرفراز چیمہ کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ مبینہ آڈیو پر مشیر داخلہ پنجاب کہتے ہیں کہ حکمران اپنے روایتی ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، نواز لیگ کا سیل آوازیں جوڑ کر یہ تمام کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایم عمران خان کی بڑھتی مقبولیت سے خوفزدہ ہے، سرکاری خزانے پر بنایا گیا میڈیا سیل مخالفین اور اداروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں کا ٹولہ ذاتیات پر حملہ کر کے اپنے جرائم پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ جبکہ معاون خصوصی عطا تارڑ نے عمران خان پر الزامات کی بوچھاٹ کر دی۔ ان کا کہنا ہے کہ اربوں کے تحفے لاکھوں میں خریدے گئے۔ سابق وزیر اعظم نے ملک کی عزت کو داؤ پر لگایا۔ عمران خان بتائیں اربوں کے تحائف کہاں ہیں؟ وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ 45 کروڑ کا تحفہ خریدا گیا ہے 5 لاکھ میں، بڑا اچھا بزنس ہے۔ میری گھڑی میری مرضی کہنے والے کو کوئی شرم آ جاتی، کوئی حیا آ جاتی کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ بڑا ایماندار ہے جی، اربوں روپیہ کھا گیا ہے قوم کا، اس ملک کا، اس ملک کی وقار کو مجروح کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، اس ملک کی عزت کو مجروح کرنے میں اس کا ہاتھ ہے کہ ایک گھڑی چور اس ملک کا وزیر اعظم تھا جو انتقام کی ہوس میں اندھا حکمران بن کے بیٹھا رہا، جو پورے 4 سال چور ڈاکو کے راگ الاپتا رہا، جو لوگوں کی عزتیں اچھالتا رہا، پگڑیاں اچھالتا رہا، کیچڑ اچھالتا رہا لوگوں پہ، قوم کے سامنے اربوں روپے کے چور بن کے کھڑے ہیں۔
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कब तहलील होंगी ये अहम सवाल है, लेकिन फैसले का वक्त भी आन पहुंचा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान के वक्त इमरान खान के साथ होंगे। इसी पर रिपोर्ट करेंगे लियाकत अंसारी। सियासी मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के दहाने पर पहुंच गए। इमरान खान की जानिब से आइंदा सियासी लाहे-अमल के ऐलान करने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीटीआई आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। हतमी ऐलान से पहले तहरीक इंसाफ का पंजाब में सियासी ताकत का मुजाहरा करने का फैसला। पंजाब के हर डिवीजन में जलसे, लाहौर लिबर्टी चौक में सियासी पावर शो होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख और दीगर सियासी इक़दामात का ऐलान करेंगे। फैसलों की तौसीक के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ज़मान पार्क में इमरान खान के साथ होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, जो लोग कह रहे हैं असम्बलियां तहलील नहीं होंगी वो आज मेरी तकरीर का इंतज़ार करें। काफ लीग से कोई इख्तलाफ नहीं, जो भी फैसला करेंगे परवेज़ इलाही अमल करेंगे। मुज़ाकरात सिर्फ इंतखाबी तारीख पर ही हो सकते हैं। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट। ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान की सीनियर कालम निगारों और तजियाकारों से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां दिसंबर में ही तहलील होंगी। जो लोग कह रहे हैं कि असम्बलियां तहलील नहीं होंगी वो हफ्ता के रोज मेरी तकरीर का इंतजार करें। पीटीआई और काफ लीग में कोई इख्तलाफ नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही उस पर अमल करेंगे जो हम उन्हें कहेंगे। इमरान खान का कहना था कि ख्वाहिश है कि आइंदा हुकूमत मजबूत हो, इत्तेहादी हुकूमत मसाइल का हल नहीं। मुल्क को बचाने के लिए मुल्क की सख्त इस्लाहात की जरूरत है। अगर इंतखाबात से गुरेज किया गया तो संगीन नताइज निकल सकते हैं। अरबों रुपए लूट कर खाने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मेरी किसी से जाती जंग नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और अवाम की बात करता हूँ। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जल्द इलेक्शन नागज़ीर हैं। सियासी इस्तेहकाम आते ही मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि गुजरे 8 माह से कानून और आइन के साथ खिलवाड़ जारी है। सारे चोर ऊपर आकर बैठ गए, इन्हें एनआरओ भी मिल गया। किसानों और ताजरों समेत सब परेशान हैं। 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। इमरान खान का कहना था, जब तक जिंदगी है रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ेंगे। वो इस्लामाबाद के वकला से वीडियो लिंक पर खिताब कर रहे थे। क्या कह रहा है, बिजनेसेस, मजदूर, कोई भी तबका ले ले, वो आज क्या कह रहा है, वो सब आज खौफजदा है। हमारे लिए सबसे तशवीशनाक जो फिगर है कि 7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले 7-8 महीने में। यानी मुल्क में लोग मायूस हो चुके हैं, होप चला गया है। रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करता है पाकिस्तान की लीगल कम्युनिटी, जुडिशरी और वकील। जो इनके बड़े करप्शन के स्टालवर्ड्स थे वो बच गए सारे, और सारे आप देख रहे हैं कि बारी बारी सारों की करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। तो ये तो किसी दुनिया के मुल्क में मैंने ऐसा नहीं देखा। शायद बनाना रिपब्लिक्स में भी ऐसा ना होता। शहबाज शरीफ का ओपन एंड शट केसेस थे, उसका केस ही नहीं लगता था। और हम बिल्कुल बेबस थे, प्राइम मिनिस्टर बेबस बैठा था। जो करता है कि यहां मुल्क के अंदर जो कानून की हुक्मरानी है वो नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है। अपनी लीगल कम्युनिटी से अपील करनी अपने मुल्क की खातिर कि देखे आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी पड़ेगी। ये वो बन गया पाकिस्तान में जंगल का कानून, और आपके सामने हो रहा है कि सारा चोर ऊपर आके बैठ गए हैं। 26 साल से मैं कहता गया कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये जो लोग चोरी करके अपने आप को कानून के ऊपर बैठा देते हैं, या वो कि जो कोई अदारा अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, ये कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एनआरओ देने का मतलब यह है कि आप वो लोग जिन्होंने पब्लिक का पैसा चोरी किया है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उनको माफी दे दें। और ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं इंशाल्लाह, मेरी तो कमिटमेंट है, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा और रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ूंगा। क्योंकि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूं कि अगर हमने रूल ऑफ लॉ के लिए ना लड़े तो हमारे मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पिछले 2 माह से मुल्क में घड़ी का शोर जारी है। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए शोशे छोड़ रही है। कोई महंगाई, बेरोजगारी और ला कानूनियत की बात नहीं करता। डॉलर्स का बंदोबस्त करने के दावेदार अब कहाँ हैं? बिलावल भुट्टो की भाग दौड़ का मुल्क को कोई फायदा नहीं हो रहा। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पिछले 2 माह से घड़ी की बात हो रही है। क्या वजह? महंगाई की बात कोई नहीं कर रहा, बेरोजगारी की बात कोई नहीं कर रहा। जब डार साहब तशरीफ लाए थे वजीर खजाना कि डॉलर डार से डर गया। मुझे लगता है कि डॉलर का
ڈار سے ڈر اتر گیا ہے. مختلف ممالک نے جو وعدے کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اتنے ارب ڈالر ہم نے ان کا بندوبست کر لیا ہے, وہ ڈالر کہاں ہیں؟ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. بلاول زرداری صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے, 7 مہینوں میں آپ نے صرف غیر ملکی دوروں پر 1 ارب 75 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. ان کا کوئی ملک کو اس کا کوئی نتائج بھی حاصل نہیں ہو رہے, کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا. آپ سے قوم پوچھ رہی ہے 1 ارب 75 کروڑ روپے جو بحیثیت وزیر خارجہ آپ کے اس مختصر پیریڈ میں دوروں پر جو خرچ ہوا ہے اس کا حساب دیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے بارے میں عمران خان کا فیصلہ حتمی ہوگا. ان کے فیصلے کا سوچ کر 27 کلومیٹر کا وزیر اعظم لرز رہا ہے. صوبائی وزیر خرم شہزاد ور کی سربراہی میں وفد نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی. پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عوام 13 جماعتوں کے نااہل ٹولے کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے. خدمت کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں. نون لیگی قیادت صرف جھوٹ بولنے میں ماہر ہے. جھوٹ بولنے سے معیشت نہیں سنبھل سکتی. یہ ٹولہ مل کر بھی قومی معیشت کو سنبھالنے میں ناکام رہا ہے. روس سے رعایتی قیمت پر تیل خریدنے کے دعووں کی کلئی کھل گئی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو حقائق سامنے لے آئے. امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ ماسکو سے رعایتی قیمت پر توانائی حاصل کر رہے ہیں اور نہ ہی اس کی کوشش کی جا رہی ہے. ماسکو سے جو بھی توانائی ملے گی اس میں وقت لگے گا. وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک نے بلاول بھٹو کے بیان کی تصدیق کی ہے کہ اس وقت روس سے تیل نہیں لے رہے. خریداری کے لیے بات چیت جاری ہے. جتنی رعایت دنیا کو ملتی ہے اتنی ہی روس سے بھی ملے گی. آئندہ سے وزارت خارجہ کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا. مصدق ملک اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. سال 10% کمی ہوتی ہے ہمارے گیس کے ذخائر میں. اس کے باوجود پچھلے سال سے زیادہ گیس ہم اس وقت فراہم کر رہے ہیں. گیس کے حوالے سے آذربائیجان کے ساتھ ایک فریم ورک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ جو ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ ہو جائے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ. ہم روس گئے، وہاں پہ ہمارا بہت اچھا ہمارا وزٹ رہا، جس میں بڑی کلیئرلی انہوں نے ہمیں یہ بتایا وہ ہمیں خام تیل دیں گے اور رعایت پہ دیں گے، اور جو پوری دنیا کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اتنا ہی ڈسکاؤنٹ یا اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. بلاول صاحب کا پورا انٹرویو نہیں دیکھا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے. یہ بات ان کی 100% ٹھیک ہے. اس وقت ہم روس سے کوئی تیل نہیں لے رہے، کوئی خام تیل نہیں لے رہے، کوئی ریفائنڈ پروڈکٹ نہیں لے رہے. تکنیکی چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کو جا کے ریفائنریز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، ریفائنری سے سوالات پوچھنے پڑتے ہیں. کیونکہ ذمہ داری ہماری ہے اور وزارت خارجہ کی نہیں، تو غالباً ہم پہ یہ مقرر ہے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس کی تمام تفصیل جو ہے وہ وزارت خارجہ کو بھیجی جائیں. کنفیوژن کمیونیکیشنز کا تھا، وہ ہم نے دور کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس میں کوئی بلیم گیم نہیں کر رہا ہوں. اعتماد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں جھول آیا ہے تو وہ دور ہو جائے گا. ہم نے ساری چیز تو سامنے رکھ دی. تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں. امپورٹڈ کول اور LNG پلانٹ بند پڑے ہیں. ڈار اور مصدق کہتے ہیں روس سے تیل خریدیں گے. بلاول کہتے ہیں نہیں خریدیں گے. حماد اظہر گجرانوالہ میں تاجر کنونشن سے مخاطب تھے. انڈسٹری ہے، جو اس کے کاروبار ہیں وہ بند ہو رہے ہیں. جو بند نہیں ہوا وہ 20-30% سے زیادہ اپنی پیداوار پہ نہیں چل رہا. مہنگا ترین تیل خریدا گیا جون میں اور مئی میں، یعنی 15 دن کا تیل خریدنے کی بجائے اس مہنگے ترین ریٹ پہ 2 ماہ کا تیل خرید لیا. روس سے سستا تیل لے نہیں رہے، دنیا سے مہنگا ترین تیل ضرورت سے بھی زیادہ لے لیا. کنفلکٹنگ بیانات جو دیے گئے کرنسی کے اوپر اور اممیچور اور غیر سنجیدہ قسم کی جو گفتگو کی گئی، اس سے مزید نقصان پہنچا. امپورٹڈ کول کے اور امپورٹڈ LNG کے پلانٹ بند پڑے ہیں. آج کیا کرنا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. وزیر خزانہ اور وزیر جو مملکت ہیں برائے پیٹرولیم وہ کہتے ہیں ہم روس سے اب سستا تیل خریدیں گے. بلاول صاحب کو حکم آتا ہے نہیں خریدنا. انہوں نے کہا یہ تو ٹرک کی بتی ہے، ہم نے نہیں خریدنا. پلان کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے، کسی کو کوئی اندازہ نہیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم سے مصر کے معروف بزنس مین نجیم ساورے سے وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے. پاکستان میں مزید شعبوں خصوصاً کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات کی فراہمی کرے گی. IT اور ٹیلی کام، توانائی، زراعت، سیاحت اور قدرتی وسائل کے شعبوں میں
सरमाया कारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। इन मौक़ों से बैरूनी सरमाया कारी कंपनीज इस्तेफादा कर सकती हैं। अभी आपको बताएं कि शौकत तरीन कहते हैं कि पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है। महंगाई के 50 साला रिकॉर्ड टूट गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त गरीब आदमी पिस रहा है। हुकूमत आवाम को बिजली तेल की कीमतों में रिलीफ दे। तरसीलात नवंबर में 14% मनफी पर हैं। शौकत तरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है। वो कहते हैं कि महंगाई के 50 साला रिकॉर्ड टूट गए हैं और आवाम परेशान है। हुकूमत आवाम को बिजली तेल की कीमतों में रिलीफ दे। शौकत तरीन की जानिब से कहा गया कि तरसीलात नवंबर में 14% मनफी पर हैं। पाकिस्तान नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है, ये कहा गया शौकत तरीन की जानिब से। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा ने कहा है कि गुज़िश्ता हुकूमत का IMF से मुअत्तल प्रोग्राम हमने शुरू किया, जिसकी सियासी कीमत भुगतनी पड़ी। IMF का एतराज़ है कि हम तवानाई की असल कीमत वसूल नहीं कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में आयशा गौस पाशा ने कहा कि कम कीमत पर तवानाई फ़रोख्त करेंगे तो IMF बात नहीं करेगा। गैस और तवानाई का गर्दिशी कर्जा 4000 अरब रुपए तक पहुँच गया। गुज़िश्ता हुकूमत ने तेल और बिजली पर सब्सिडी देकर ज़्यादती की। टैक्स महसूलात बढ़ाने का मुतालबा IMF का है। आलमी मालियाती इदारे को सब्सिडीज़ पर एतराज़ है। वेलकम बैक। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में मौजूद इंतजामी यूनिट्स, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िले कौंसल्स की हदूद फौरी मुंजमद करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के हिदायतनामे में कहा गया है कि इंतजामी यूनिट्स की हदूद में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन की हल्काबंदी कमेटी या बतौर कन्वीनर तैनात अफसरान के तबादलों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन कौंसल्स की हल्काबंदियों का आगाज कर दिया। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज 31 मार्च तक शाया ना किए गए तो नई हल्काबंदियां मुश्किल हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने वजारत मनसूबाबंदी और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को बज़रिया ख़त आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर वक्त फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है बार बार इदारा शुमारियात को 31 दिसंबर तक मरदमशुमारी मुकम्मल करने का कह चुके। पहले बताया गया था नताइज 31 दिसंबर तक शाया हो जाएंगे, लेकिन अब इदारा शुमारियात ने 31 मार्च तक हतमी नताइज शाया करने की तारीख बताई है। इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखा कि मरदमशुमारी के बाद आइन के तहत नई हल्काबंदी करना लाजिम है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज FIA में पेश हुए। FIA ने 9 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा थमा दिया। सुलेमान शहबाज 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। सुलेमान शहबाज से 9 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामे के जवाबात जल्द मांगे गए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज हिफाजती जमानत कराने के बाद FIA में पेश हुए। सुलेमान शहबाज ने सवालनामे का जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा है। पंजाब काबीना ने लाहौर के लिए मुकम्मल अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट सिस्टम की उसूली मंजूरी दे दी। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन प्रोजेक्ट ADP में शामिल कर लिया गया है। महकमा सेहत में 5 से 15 स्केल तक के मुलाजिमीन की भर्तियों की मंजूरी भी दे दी गई। लियाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब काबीना ने लाहौर के लिए पहली मरतबा मुकम्मल अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट सिस्टम की असूली मंजूरी दे दी। अंडरग्राउंड ब्लू लाइन और पर्पल लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। वज़ीर पंजाब का कहना था कि यह प्रोजेक्ट एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। विलेंशिया टाउन से कलमा चौक, लिबर्टी चौक, दाता दरबार एयरपोर्ट तक अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट सिस्टम कायम होगा। पंजाब काबीना ने महकमा सेहत में 5 से 15 स्केल तक भर्ती की मंजूरी दी। कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी पूरी करने के लिए 600 असामियों पर भर्ती का असूली फैसला। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत मुलाजमीन की उजरत में इजाफा किया जाएगा। चुलस्तान के बेजमीन काश्तकारों को अराजी के मालकाना हकूक के यूनिट के रेट्स में 50% कमी कर दी गई। सफारतकारों और कौंसलेट के लिए वैल्यू एडेड टैक्स इस्तिस्ना की भी मंजूरी दी गई। काबीना ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर, फैसलाबाद और गुजरात के अस्पतालों में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लैनर एक्सीलेटर की मंजूरी दे दी। मुल्तान में कैंसर, सरगोदा में कार्डियोलॉजी का अस्पताल
कायम किया जाएगा। पंजाब कबीना ने नए जिला तौंसा के क्याम की तोसी और नई तहसील वहुआ के क्याम की भी मंजूरी थी। चीचावतनी, रजाना, पीर महल, लिया तक तौंसा 207 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी दी गई। M4 चिरागाबाद, झांग बाईपास तक शोरकोट तक 103 किलोमीटर सड़क बनेगी। दीपालपुर पाकपतन तक विहाड़ी तक 150 किलोमीटर रोड तामीर होगी। इजलास में शोधा APS के लिए खुसूसी दुआ की गई और शोधा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पार्टी छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि जिस दिन उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था उसके बाद कुछ नहीं बचा था। मुस्तफ़ा नवाज ने कहा कि सियासी मुस्तकबिल का फैसला आइंदा कुछ अरसे में साथियों से मुशावरत के बाद करेंगे। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को खुसूसी रिलीफ पैकेज देने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकाम को हिदायत की है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। गैस और बिजली के बिलों में भी सहूलत देने की हिदायत कर दी गई है। जावेद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवाम को खुसूसी रिलीफ पैकेज देने का फैसला। गैस और बिजली के बिलों में भी रिलीफ के इक़दाम तजवीज़ करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए भी वजारतों को टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महंगाई से रिलीफ और नौजवानों को रोजगार की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसे सामने रखते हुए मुआशी रिलीफ पैकेज तैयार किया जाए। हमें नौजवानों को मायूसी से बचाकर मुस्बत और तामीरी सरगर्मियों की तरफ लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुआशी मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन हमें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। वज़ारत खजाना पैकेज की तैयारी के लिए वसाइल की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को सियासी इज्तिमात में हुकूमत के मुआशी इक़दामात को उजागर करने की भी हिदायत की। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें करेंसी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था, इंसदाद स्मगलिंग के लिए तमाम इदारे और महकमे बाहमी ताउन बढ़ाएं। करेंसी, यूरिया और गंदम की स्मगलिंग किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसदाद स्मगलिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास बाकायदा मुनक्किद किया जाएगा। इंसदाद स्मगलिंग के लिए इंटेलिजेंस इदारे ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करें। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मज़ीद कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियां मांद रहीं। रुपया अपनी कदर खो रहा है, जबकि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 23 पैसे इजाफे से 224 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ, जबकि करेंसी डीलर्स ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए बता रहे हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज सूद की अदायगियाँ, बरामदात, तरसीलात ज़र में कमी और बैरूनी सरमायाकारी घट जाने के सबब ज़र मुबादला ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं, जिसके बाइस रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। दूसरी जानिब माशी गैर यकीनी की सूरत हाल के बाइस स्टॉक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मांद रही। इख्तिताम पर मार्केट 121 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,301 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल, खराब माशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगाने के बजाय शेयर्स फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। कराची में एक बार फिर दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक हालिया 10 रुपए इजाफे से फी लीटर दूध की खुर्दा कीमत 180 रुपए हो गई। डेयरी फार्मर्स के लिए फी लीटर कीमत 163 रुपए और होल सेलर्स के लिए 170 रुपए होगी। शहरियों ने इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उनका कहना है, महंगाई को देखते हुए इंतजामिया कीमतों में कमी करने की बजाय इजाफा कर रही है। कमिश्नर कराची फैसला वापस लें। अरशद शरीफ कत्ल केस की स्पेशल GIT का इजलास हुआ। टीम ने DIG CTD खैबर पख्तूनख्वा जावेद इकबाल से मालूमात हासिल की। स्पेशल GIT के छठे इजलास में अरशद शरीफ को जारी थ्रेट लेटर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नेशनल पुलिस ब्यूरो के फोरेंसिक एक्सपर्ट से भी मुशावरत की गई। GIT ने पोस्टमार्टम बोर्ड के डॉक्टर से भी सवालात किए, जबकि आइंदा इजलास के लिए अहम शहादतों को तलब कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।